اگر آپ کے گھر میں یہ 15 یا ان 15 میں سے کوئی ایک بھی نشانی نظر آئے تو اس گھر کو کبھی فروخت نہ کرنا۔ ان 15 نشانیوں والے گھر میں جتنا زیادہ آپ رکیں گے اتنے زیادہ امیر اور دولت سے مالا مال ہوتے چلے جائیں گے۔ ان 15 نشانیوں والے گھر میں رکنا انسان کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر آپ مستقبل میں اپنے گھر کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں یہ 15 نشانیاں ہیں تو بھول کر بھی ایسے گھر کو کبھی سیل نہ کرنا، کبھی فروخت نہ کرنا، کیونکہ اس گھر میں جتنا زیادہ آپ رہیں گے، جتنا زیادہ اس گھر میں آپ رکیں گے، اتنا آپ اس گھر میں وقت مزید گزاریں گے، آپ امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا یہ 15 نشانیوں والا گھر آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کر چکے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں اب آپ کا نصیب نہیں رہا تو رک جائیے، صرف 10 منٹ کے لیے رک جائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہے ہوں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مکان صرف اینٹ اور گارے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ مکانات خاموش دعا ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بھی وہی پر اسرار نشانیاں موجود ہیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر نہ چھوڑنا، یہاں تمہاری نسلوں کا رزق چھپا ہے؟ آج میں آپ کو وہ 15 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور نہ ہی کسی عام کتاب میں ملیں گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قدیم بزرگوں کے مشاہدات اور روحانی اصولوں کا نچوڑ ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ان میں سے صرف 3 نشانیاں بھی ہیں تو مبارک ہو، آپ ایک روحانی قلعے میں رہ رہے ہیں۔ دوستو، پہلی نشانی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھروں کی دیواریں اپنے اندر مقناطیسی برکت رکھتی ہیں؟ وہ نشانی کیا ہے اسے میں نے نمبر 7 پر رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم وہ نشانیاں دیکھیں گے جو آپ کے صحن اور باورچی خانے میں بکھری پڑی ہیں اور آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس پہلی بڑی نشانی کی طرف چلتے ہیں جسے ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن کبھی اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پائے۔ اگر آپ کے گھر کے کسی خاص گوشے میں، دیوار کی اوٹ میں یا روشن دان میں پرندوں نے، خاص طور پر چڑیوں، کبوتروں یا ابابیل نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا ہے تو یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پرندے انسانوں سے کہیں زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ زمین کے اندر موجود جیوپیتھک سٹریس اور الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں پرندے سکون سے بیٹھتے ہیں یا گھونسلہ بناتے ہیں، وہ جگہ قدرتی طور پر نیگیٹو انرجی سے پاک ہوتی ہے۔ اگر پرندے آپ کے گھر کو اپنی سیف ہیون سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھر ایک ہائی ویلیو ایسٹ ہے جس کی فضا میں سکون کا عنصر یعنی پیس فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں ابابیل اور کبوتر کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پرندے اس گھر کا انتخاب کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں کے مکینوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ پرندوں کی تسبیح اس گھر کی دیواروں کے لیے ایک روحانی حفاظتی ڈھال یعنی اسپرچول شیلڈ بن جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں ابابیل گھونسلہ بناتی ہے اس گھر کے بارے میں قدیم حکما کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر سے اچانک آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ دوستو، ذرا ابھی کامنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کے گھر میں بھی کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب سے وہ پرندہ وہاں ہے آپ کے گھر میں ایک عجیب سا سکون ہے؟ اگر آپ ایسے گھر کو بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ صرف اینٹیں نہیں بیچ رہے بلکہ آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بیچ رہے ہیں جو خریدنے والا کروڑوں روپے لگا کر بھی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پراپرٹی مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی نیچرل وائبز والے گھر نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف پہلی نشانی تھی، ابھی وہ دوسری نشانی آنا باقی ہے جو آپ کے باورچی خانے یعنی کچن میں چھپی ہے۔ وہ نشانی جو آپ کے رزق اور بجٹ یعنی فائنینشیل سٹیبلٹی سے جڑی ہے اور جسے دیکھ کر بڑے بڑے امیر لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے آٹے اور چینی کے ڈبے آپ کی قسمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دوستو، اب ہم اس دوسری بڑی نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کے گھر کے اس حصے میں چھپی ہے جسے گھر کا دل کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا باورچی خانہ کچن۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں آمدنی تو لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی کچن کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ نشانی موجود ہے کہ آپ کے کچن کا راشن، آپ کا آٹا، چینی، دالیں اور گھی آپ کی توقع سے زیادہ دن چلتے ہیں، یعنی آپ لاتے کم ہیں لیکن وہ ختم دیر سے ہوتا ہے، تو مبارک ہو۔ یہ اس گھر کے مبارک ہونے کی سب سے بڑی فائنینشیل انڈیکیٹر ہے۔ یہ وہ خفیہ برکت ہے جس کا ذکر قدیم بزرگوں نے برکت غیبی کے نام سے کیا ہے۔ سائنس اور
और रिसोर्स मैनेजमेंट के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में ज़हनी सुकून और कनात यानी कंटेंटमेंट होती है वहाँ इंसान की भूख और खर्च करने की आदतें मुतवाजन हो जाती हैं। ये आपके घर की एसेट वैल्यू को बढ़ाता है क्योंकि एक पुरसुकून घर आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को खुद ब खुद कंट्रोल में रखता है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं जहां थोड़े रिस्क में भी ढेरों बरकत है तो याद रखिए कि आप एक ऐसा मनी मैग्नेट हाथ से छोड़ रहे हैं जो दोबारा किसी आलीशान बंगले में भी शायद आपको ना मिले। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस घर में दस्तरखान कुशादा होता है और जहां रिस्क की कदर की जाती है वहां फरिश्ते खुद उस रिस्क की हिफाजत करते हैं। ये निशानी इस बात की दलील है कि आपके घर की जमीन पाकीज़ा है और वहां का दाना पानी अल्लाह के खास फजल में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके किचन में पकी हुई दाल का जायका भी किसी होटल के महंगे खाने से बेहतर होता है? ये वही बरकत है जो सिर्फ खास घरों का मुकद्दर होती है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि किचन का सामान खत्म हो गया होगा लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें से अभी भी कुछ बरामद हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस मोजज़े के गवाह हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बरकत सिर्फ किचन तक महदूद है तो आप गलती पर हैं। अभी तो वो तीसरी निशानी आना बाकी है जिसका ताल्लुक आपके घर के बच्चों के रवैये और उनकी नफ्सियात से है। वो निशानी जो बताती है कि आपका घर नूरानी हिसार में है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे घर के अंधेरे हिस्सों के बारे में क्या महसूस करते हैं? दोस्तों, अब हम उस तीसरी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर के उन नन्हे फरिश्तों से जुड़ी है जिन्हें हम बच्चे कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बच्चे शाम ढलते ही अकेले कमरे में जाने से कतराते हैं या किसी खास कोने को देखकर सहम जाते हैं? माहिरीन नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट और रूहानियत के अलमबरदार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि छोटे बच्चे जो अभी दुनिया की आलूदगी से पाक होते हैं उनकी हिस लतीफ बहुत तेज होती है। वो एनर्जी की उन लहरों को महसूस कर लेते हैं जिन्हें हम बड़े नहीं देख पाते। अगर आपका बच्चा घर के अंधेरे हिस्सों में भी बेखौफ होकर जाता है, वहाँ अकेला खेलता है या आपको लगता है कि वो खाली जगह को देखकर मुस्कुरा रहा है तो मुबारक हो। ये इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि आपका घर नेगेटिव एनर्जी से मुकम्मल पाक है। एक ऐसा घर जहाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट खौफ से आज़ाद माहौल में होती है वो किसी नेमत से कम नहीं है। आजकल की लग्जरी रियल स्टेट में लोग करोड़ों रुपए सिक्योरिटी सिस्टम पर लगाते हैं लेकिन वो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं खरीद सकते जो एक पाकीज़ा घर में खुद ब खुद मौजूद होता है। अगर आपके बच्चे इस घर में सेफ और निडर यानी कि सेफ एंड बोल्ड महसूस करते हैं तो ये घर आपके आने वाली नस्लों के लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे घर को छोड़ना अपनी औलाद को एक मजबूत बुनियाद से महरूम करने के मुतरादिफ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में मासूम बच्चे अकेले भी खुश रहें वहाँ रहमत के फरिश्तों का बसेरा होता है। वहाँ कोई ऐसी शरपसंद चीज या फितना कदम नहीं जमा सकता जो मासूम रूहों को परेशान करे। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपकी दीवारें अल्लाह के जिक्र और पाकीज़ा अरवाह के हिसार में हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे से पूछा है कि उसे घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी किसी खाली दीवार को देखकर मुस्कुराता है या किसी खास जगह पर जाकर बहुत खुश हो जाता है? अगर हाँ तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा देख रहा है जो बहुत ही मुबारक है। कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखकर बताएं कि उसकी उम्र क्या है और क्या वो निडर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर की बरकत सिर्फ बच्चों और परिंदों तक महदूद है तो अभी वो चौथी निशानी आना बाकी है जो आपके सोए हुए नसीब को जगा सकती है। वो निशानी जो आपके घर की मेहमान नवाजी से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मेहमान हैं जिनका अचानक आना आपकी किस्मत बदलने का इशारा होता है? दोस्तों, अब हम उस चौथी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को थका देती है लेकिन हकीकत में ये आपके घर के अमीर होने की सबसे बड़ी रूहानी दलील है। क्या आपके घर में मेहमानों की आमदोरफ्त गैर मामूली है? क्या लोग आपके घर आने के बहाने ढूंढते हैं? कदीम बुजुर्ग और रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर का रास्ता मेहमान भूल जाएं वो घर वीरान हो जाता है। अगर आपका घर ऐसा है जहां दोस्त, रिश्तेदार या हत्ता के दूर के वाकिफकार भी बिन बुलाए चले आते हैं और वहां आकर घंटों बैठे रहते हैं तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की मट्टी में कशिश यानी अट्रैक्शन है। मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लाता है लेकिन जाते हुए आपके घर की बलाएं और परेशानियां अपने साथ ले जाता है। आज के दौर में जहां लोग प्राइवेसी के नाम पर तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, एक ऐसा घर जहां रौनक लगी रहे वो हाई वैल्यू सोशल एसेट है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जिस घर में लोगों का आना जाना ज्यादा हो वहां के मकीन कभी भी
डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अगर आप ऐसे रौनक वाले घर को बेचने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप एक ऐसा एक्टिव एनवायरनमेंट खो रहे हैं जो आपकी ज़हनी सेहत और मुआशरती साख यानी सोशल स्टैंडिंग के लिए ढाल बना हुआ है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जिस घर में मेहमान ना आए उसमें फरिश्ते नहीं आते। मेहमान का आना दरअसल अल्लाह की तरफ से इस बात की सनद है कि उसने आपको सखी चुना है। आपके घर का दस्तरख्वान जितना वसी होगा आपके रिस्क के जराए उतने ही गैबी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया कि जिस दिन मेहमान ज्यादा हों उस दिन खाने में एक खास जायका और बरकत आ जाती है। ये वही नूर है जो सिर्फ मेहमान नवाज घरों का मुकद्दर होता है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा मेहमान है जो हफ्ते में 3 बार आ जाता है और आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं? या क्या आपको मेहमानों की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी थके हुए मेजबान का हौसला बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बरकत सिर्फ लोगों के आने से है तो अभी वो 5वीं निशानी आना बाकी है जो आपकी अपनी सेहत और शिफा से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक अस्पताल है जो आपका इलाज कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों की दीवारों में शिफा क्यों होती है? दोस्तों, अब हम उस 5वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर की दीवारों में छुपी हुई खामोश शिफा यानी पैसिव हीलिंग है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जब किसी नए घर में मुंतकिल होते हैं तो अचानक उनकी पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं या उनके घर के अफराद पहले से ज्यादा तंदुरुस्त रहने लगते हैं? साइंस कहती है कि हर जगह की अपनी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके घर में दाखिल होते ही आपकी थकन दूर हो जाती है, आपका सर दर्द गायब हो जाता है या उस घर में आने के बाद आपके घर वालों को अस्पताल के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की दीवारें, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की हवा शिफायाब हीलिंग है। ये एक नेचुरल हेल्थ एसेट है जिसे करोड़ों रुपए के इलाज से भी बेहतर माना जाता है। माहिरीन सेहत यानी वेलनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस घर में सूरज की रोशनी का तनासुब, हवा का गुजर और मुस्बत लहरें यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुतवाजन हो, वो घर खुद एक डॉक्टर बन जाता है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं जहां आपके बच्चे सेहतमंद रहते हैं और जहां आपके बुजुर्गों को सुकून मिलता है, तो याद रखिए कि आप एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस को ठुकरा रहे हैं जो दोबारा शायद किसी पोश इलाके के बंद कमरों वाले बंगले में आपको ना मिले। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस जमीन पर कसरत से सजदे किए जाएं और जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए वहां की मिट्टी में तासीर आ जाती है। वो जमीन अपने मकीनों की बलाएं और बीमारियां अपने अंदर जज्ब कर लेती है। ये निशानी इस बात की दलील है कि आपका घर अल्लाह के हिफाजती हिसार में है जहां रूहानी जरासीम यानी इविल वाइब्स कदम नहीं जमा सकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में जो पानी है उसका एक गिलास भी आपको कितनी फरहत देता है? दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे शहर या घर से वापसी पर जैसे ही आपने अपने घर कदम रखा आपकी सारी थकन मिट गई? अगर आपका घर आपके लिए सुकून और शिफा का बाइस है तो कमेंट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कितनी बड़ी नेमत के साए में हैं। अगर आपको लगता है कि घर की बरकत सिर्फ सेहत तक है तो अभी वो 6ठी निशानी आना बाकी है जो आपकी नींद और जहनी सुकून से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका बिस्तर आपको क्या पैगाम दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ बिस्तरों पर लेटते ही नींद क्यों आ जाती है? दोस्तों, अब हम उस 6ठी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी मौजज़े से कम नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बाहर कहीं भी चले जाएं, किसी 5 स्टार होटल के रेशमी बिस्तर पर भी लेट जाएं, लेकिन आपको वो नींद नहीं आती जो आपको अपने घर के बिस्तर पर आती है? साइंस कहती है कि कुछ जमीनें और इमारतें ऐसी होती हैं जो इंसान के आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम को फौरन पुरसुकून कर देती हैं। इसे अर्थनिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। अगर आप अपने घर की दहलीज पार करते ही तनाव यानी स्ट्रेस से आजाद हो जाते हैं और बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें मूंद जाती हैं तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू वेलनेस सेंचुरी है। आपका घर आपकी बैटरी रिचार्ज करने वाला स्टेशन है। माहिरीन नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस घर में सुकून की नींद आए वहाँ के मकीनों की कारकर्दगी यानी कि प्रोडक्टिविटी आम लोगों से 100 गुना ज्यादा होती है। आप करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीद सकते हैं लेकिन वो नींद की लज्जत नहीं खरीद सकते जो सिर्फ एक मुबारक घर की फिजा में होती है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप अपना सुकून दांव पर लगा रहे हैं। क्या आप दोबारा किसी ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां आपको रात भर करवटें बदलनी पड़े? कुरान पाक में जिक्र है कि हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम बनाया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस
گھر میں فرشتے پہرا دیتے ہوں وہاں کے مکینوں کو خوف کے خواب یعنی نائٹ میئرز نہیں آتے۔ اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دیواریں ذکر الہی سے معطر ہیں اور وہاں کوئی شیطانی خلل موجود نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے گھر کے بستر میں وہ کون سا جادو ہے جو باہر کے کسی ہوٹل میں نہیں؟ دوستو، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ یا سفر پر کہیں جائیں تو پوری رات آنکھ نہیں لگتی اور دل تڑپتا ہے کہ کب اپنے گھر جائیں گے؟ اگر آپ کو بھی اپنے گھر کا بستر دنیا کا سب سے پرسکون مقام لگتا ہے تو کامنٹ میں سچ بات ہے لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ لیکن ابھی تو وہ 7ویں نشانی آنا باقی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ نشانی جو آپ کی دیواروں کی چمک اور خوشبو سے جڑی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھروں سے بغیر کسی پرفیوم کے خوشبو کیوں آتی ہے؟ دوستو، اب ہم اس 7ویں اور سب سے خاص نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا وعدہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے کسی پرانے کمرے میں داخل ہوتے ہیں یا کسی الماری کو کھولتے ہیں تو وہاں سے ایک ایسی عجیب سی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے جو نہ تو کسی پرفیوم کی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اگربتی کی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر مادے یعنی میٹر کی اپنی ایک خاص بو ہوتی ہے جسے سگنیچر سینٹ کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا گھر صاف ستھرا ہے اور وہاں سے بغیر کسی ایئر فریشنر کے ایک سکون دہ مہک آتی ہے تو اسے روحانی خوشبو مانا جاتا ہے۔ ماہرین ماحولیات انوائرمنٹل ایکسپرٹس کے مطابق جس جگہ کی ہوا میں آلودگی یعنی کہ ٹاکسنز کم ہو اور جہاں کا انرجی لیول مثبت ہو وہاں کی فضا خود بخود معطر محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ کے گھر کی ہائی اینڈ لگژری فیچر ہے جسے مصنوعی سپرے سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، صرف خوشبو ہی نہیں بلکہ اس گھر کی نورانیت بھی ایک نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں لائٹیں کم بھی ہوں تب بھی وہاں کی دیواریں روشن محسوس ہوتی ہیں، جبکہ کچھ گھروں میں مہنگی ترین لائٹس لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہاں اندھیرا اور وحشت برستی ہے؟ اگر آپ کا گھر دن کی روشنی میں کھلا کھلا اور رات کے اندھیرے میں پر نور لگتا ہے تو مبارک ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا گھر خیر و برکت کا مرکز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جہاں فرشتے کثرت سے آتے ہیں وہاں کی فضا معطر ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن اور درود پاک کی برکت سے گھر کی دیواروں میں ایک ایسی خوشبو بس جاتی ہے جو صرف صاحب ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے مہکتے ہوئے گھر کو بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ ایک ایسا پرسٹین انوائرمنٹ کھو رہے ہیں جو آپ کی روح کو تازہ رکھتا تھا۔ کیا آپ دوبارہ کسی ایسی جگہ رہنا چاہیں گے جہاں کی ہوا میں حبس اور گھٹن ہو؟ دوستو، سچ بتائیے گا، کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا کونا یا کوئی ایسی الماری ہے جہاں سے آپ کو اپنے بچپن کی یا کسی پیارے کی خوشبو آتی ہے؟ وہ خوشبو جو آپ کو دنیا کے تمام غم بھلا دیتی ہے؟ اگر ہاں تو کامنٹ میں جی ہاں لکھیں اور بتائیں کہ وہ مہک آپ کو کیسا محسوس کرواتی ہے۔ دوستو، خوشبو اور روشنی تو ہو گئی، اب وہ 8ویں نشانی آنا باقی ہے جو آپ کے گھر کی دیواروں کی مضبوطی اور ٹوٹ پھوٹ سے جڑی ہے۔ وہ نشانی جو بتاتی ہے کہ آپ کے گھر کا تعمیراتی میٹیریل یعنی کہ کنسٹرکشن میٹیریل آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھروں میں سیم یعنی سیپیج کیوں نہیں آتی؟ دوستو، اب ہم اس 8ویں بڑی نشانی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے گھر کی تعمیراتی ڈھانچے یعنی سٹرکچر میں چھپی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو دہائیاں گزرنے کے باوجود نئے لگتے ہیں، جبکہ کچھ گھروں پر لاکھوں روپے لگانے کے باوجود دیواریں جھڑنے لگتی ہیں اور چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں؟ سائنس اور انجینئرنگ یعنی کہ سول انجینئرنگ کے ماہرین کہتے ہیں کہ جس زمین میں نمی یعنی موئسچر زیادہ ہو وہاں دیواریں جلدی جواب دے جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کا گھر پرانا ہونے کے باوجود سیم سے پاک ہے، اس کی دیواریں مضبوط ہیں اور پلستر نہیں جھڑ رہا تو مبارک ہو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر کی ایسٹ لانگیویٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوریبل انویسٹمنٹ ہے جسے آج کل کے ناقص میٹیریل والے دور میں دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ روحانیت کے ماہرین ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کثرت سے لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور بدتمیزی ہوتی ہے وہاں کی دیواریں بوجھ محسوس کرتی ہیں اور ان میں دراڑیں یعنی کریکس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جس گھر میں محبت اور سکون ہو وہاں کی دیواریں سانس لیتی ہیں اور ان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کی دیواریں آج بھی چٹان کی طرح کھڑی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے گھر کی مٹی مبارک ہے اور وہاں سکون کا راج ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کی بنیادیں حلال کمائی سے رکھی گئی ہوں اس گھر کو آفات سے اللہ خود محفوظ رکھتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کی سند ہے کہ آپ کے گھر کی تعمیر میں برکت شامل ہے۔ کیا آپ ایسے مضبوط اور برکت والے گھر کو بیچ کر کسی ایسے مکان میں جانا چاہیں گے جہاں ہر دوسرے مہینے مرمت یعنی ریپیئرنگ کروانے
पानी पड़े। दोस्तों, क्या आपका घर भी 10 या 20 साल पुराना है लेकिन आज भी देखने में नया लगता है? या क्या आपने कभी महसूस किया कि जब घर में झगड़ा हो तो चीजें ज्यादा टूटने लगती हैं? अपना तजुर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी का नजरिया बदल सकती है। लेकिन दीवारें तो मजबूत हो गईं, अब वो 9वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के दरख्तों और हरियाली से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर का साया आपसे क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे आपके घर में क्यों नहीं सूखते? दोस्तों, अब हम उस 9वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर के सेहन यानी टेरेस या गमलों में छुपी हुई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पौधे लगाते ही सूख जाते हैं, जबकि कुछ घरों में मिट्टी का जरा सा ढेर भी हो तो वहां हरियाली फूट पड़ती है। बोटेनिकल साइंस कहती है कि पौधे सिर्फ पानी और धूप से नहीं बढ़ते, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द की वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। अगर आपके घर में पौधे बगैर किसी खास खाद या मेहनत के खुद ब खुद लहलहाते हैं और उनके पत्ते हमेशा चमकदार रहते हैं तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की फिजा में ऑक्सीजन और मस्बत लहरें यानी कि पॉजिटिव वाइब्स का तनासुब बहुत ज्यादा है। ये एक इको फ्रेंडली एसेट है जो आपकी सेहत के लिए लाखों रुपए की कदर रखती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में लगे हुए दरख्त फल दें या घना साया करें, वो घर मुबारक जमीन पर कायम है। खास तौर पर अगर आपके घर में नीम, बेरी या लीमू का पौधा हरा भरा है तो ये इस बात की दलील है कि वहाँ नहुसत का गुजर नहीं है। पौधे उस घर के मकीनों की मनफी तवानाई को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। अगर आप ऐसे हरे भरे घर को बेचने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप एक ऐसी नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम खो रहे हैं जो आपकी रूह को तरोताजा रखता था। कुरान पाक में जिक्र है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। पौधों का हरा भरा होना दरअसल उस घर में होने वाले जिक्र और सुकून का अक्स है। जिस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है वहाँ की मिट्टी कभी बंजर नहीं होती। क्या आप ऐसे घर को छोड़कर किसी ऐसी कंक्रीट के जंगल में जाना चाहेंगे जहाँ एक फूल खिलाने के लिए भी आपको तरसना पड़े? दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा पौधा है जो बरसों से आपके साथ है और आप उसे अपने घर का फर्द समझते हैं? या क्या आपने महसूस किया कि जब आप परेशान हो और पौधों के पास बैठें तो आपका गम हल्का हो जाता है? अपने पसंदीदा पौधे का नाम कमेंट्स में लिखें, देखते हैं कि कितने लोग फितरत से प्यार करते हैं। दोस्तों, हरियाली और दीवारें तो हो गई, अब वो 10वीं बड़ी निशानी आना बाकी है जो आपके घर की पुर इसरार आवाजों से जुड़ी है। वो निशानी जो खामोशी में भी कुछ कहती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों की खामोशी में इतनी मिठास क्यों होती है? दोस्तों, अब हम उस 10वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा पुर इसरार है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में गली का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की आवाजें अंदर दाखिल होते ही दम तोड़ देती हैं? आप जैसे ही दहलीज पार करते हैं एक ऐसी मुकद्दस खामोशी आपका इस्तकबाल करती है जो आपके दिमाग की सारी उलझनें खत्म कर देती है। साइंस और आर्किटेक्चरल अकोस्टिक्स के माहिरीन कहते हैं कि कुछ इमारतों का डिजाइन और वहां का माहौल आवाज की लहरों को इस तरह जज्ब यानी एब्जॉर्ब करता है कि वहां एक पुरसुकून खला क्वाइट जोन पैदा हो जाता है। अगर आपके घर में शोरो गुल के बावजूद एक अंदरूनी सुकून और मीठी खामोशी मौजूद है तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू मेंटल हेल्थ रिट्रीट है। ये वो सुकून है जिसे लोग महंगे तरीन साउंड प्रूफ कमरे बनाकर भी हासिल नहीं कर पाते। नफ्सियात कहती है कि जिस घर में मनफी तवानाइयां हो वहाँ की खामोशी डरावनी होती है, वहाँ इंसान का दम घुटता है। लेकिन जिस घर में बरकत हो वहाँ की खामोशी एक मिठास होती है। वहाँ अकेले बैठकर भी इंसान खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। अगर आपके घर की खामोशी आपको डराती नहीं है बल्कि आपको लोरी सुनाती है तो ये इस बात की दलील है कि आपका घर खैरो बरकत के हिसार में है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से दरूद पाक और तस्बीहात पड़ी जाती हैं वहाँ की फिजा में एक रूहानी गूंज बस जाती है जो दुनियावी शोर को फिल्टर कर देती है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपकी दीवारें जिक्र इलाही से मानूस हो चुकी हैं। क्या आप ऐसे पुरसुकून और मीठे घर को छोड़कर किसी ऐसे शोर ज़दा फ्लैट में जाना चाहेंगे जहां आपको अपने ख्यालात तक सुनाई न दें? दोस्तों, सच बताइएगा, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा कोना है जहां बैठकर आपको दुनिया का सारा शोर भूल जाता है? वो जगह जहां आप खुद से बातें करते हैं और आपको दिली सुकून मिलता है? अगर हाँ तो कमेंट में मेरा घर मेरा सुकून जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कितने खुशनसीब हैं। दोस्तों, खामोशी तो हो गई, अब वो 11वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर की रोशनी और सायों से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर की खिड़कियां आपको क्या दिखाना चाहती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज की पहली किरण आपके घर के किस हिस्से पर पड़ती है? दोस्तों, अब हम उस 11वीं बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं। क्या आपके घर में सूरज की पहली किरण बराह रास्त
راحت दाखिल होती है, या क्या आपका घर दिन भर कुदरती रोशनी से रोशन रहता है। आर्किटेक्चरल साइंस कहती है कि जिस घर में सनलाइट का गुजर ज्यादा हो वहाँ के मकीन कभी जहनी दबाव या सुस्ती का शिकार नहीं होते। ये एक एनर्जी एफिशिएंट होम की निशानी है जो आपके बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स में भी बचत करती है और आपके मूड को भी खुशगवार रखती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा का गुजर हो वहाँ से बीमारियां और नहुसत भाग जाती हैं। ये निशानी इस बात की दलील है कि आपका घर अल्लाह की दी हुई फितरी नेमतों से मालामाल है। अगर आप ऐसे रोशन घर को छोड़कर किसी बंद और अंधेरे मकान में जाने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप अपनी सेहत और बरकत का सौदा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह की पहली किरण अपने कमरे में अच्छी लगती है? कमेंट में जी हाँ लिख कर बताएं। लेकिन दोस्तों, रोशनी तो हो गई, अब वो 12वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के कोनों और सफाई से जुड़ी है। दोस्तों, अब हम उस 12वीं बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में कितना ही झाड़ू लगाओ अगले दिन फिर जाला यानी स्पाइडर वेब बन जाता है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां महीनों तक जाले नजर नहीं आते। साइंस और होम मेंटेनेंस के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में हवा का गुजर यानी कि वेंटिलेशन बेहतर हो और नमी कम हो वहां कीड़े मकोड़े घर नहीं बनाते। लेकिन रूहानी तौर पर बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से तस्बीह होती है वहां के कोने पाक रहते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस एसिड की निशानी है जो आपकी मेहनत और वक्त दोनों बचाती है। कहा जाता है कि शैतान और मनफी ताकतें गंदगी और जालों में बसेरा करती हैं। अगर आपका घर कुदरती तौर पर इन चीजों से पाक रहता है तो ये इस बात की दलील है कि आपके घर में नूरानियत का गलबा है। क्या आप ऐसे साफ सुथरे और बरकत वाले घर को छोड़कर किसी आलूदा जगह पर जाना चाहेंगे? दोस्तों, क्या आपके घर के कोने भी हमेशा साफ रहते हैं? कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी खुशनसीबी का इजहार करें। दोस्तों, अभी वो 13वीं निशानी आना बाकी है जो आपकी आमदनी और खैरो बरकत से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका पर्स यानी कि वॉलेट आपके घर के बारे में क्या कहता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में पैसे क्यों नहीं रुकते? दोस्तों, अब हम उस 13वीं बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी जेब से जुड़ी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी आमदनी तो कम है लेकिन आपके अखराजात बड़े सुकून से पूरे हो रहे हैं? क्या आपको महीने के आखिर में भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता? इकोनॉमिक्स के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में सुकून हो वहाँ गैर जरूरी अखराजात यानी कि इम्पल्स बाइंग कम हो जाती है। लेकिन रूहानी तौर पर इसे रिस्क का ठहराव कहा जाता है। अगर आपका घर ऐसा है जहाँ पैसे आते ही उड़ नहीं जाते बल्कि बरकत देते हैं तो मुबारक हो। ये एक हाई फाइनेंशियल एसेट की निशानी है जो आपको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ मकानात ऐसे होते हैं जहाँ कदम रखते ही इंसान का हाथ तंग हो जाता है, जबकि कुछ घरों में अल्लाह गैब से असबाब पैदा कर देता है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपका घर आपके लिए नसीब वाला है। क्या आप ऐसे खैरो बरकत वाले घर को बेचकर किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां लाखों कमा कर भी आप कर्जदार रहें? दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि इस घर में आने के बाद आपके रिस्क में बरकत हुई है? कमेंट में अल्लाह का शुक्र है लिखकर अपनी गवाही दें। लेकिन ठहरिए, अभी वो 14वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के बुजुर्गों की सेहत और चेहरों से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर का साया कितना घना है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में बुजुर्ग जवान क्यों लगते हैं? दोस्तों, अब हम उस 14वीं बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे घर के असल सतून यानी हमारे बुजुर्गों से जुड़ी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बुजुर्गों के चेहरे खिले खिले और पुरसुकून रहते हैं, जबकि कुछ नए और मॉडर्न घरों में वो घुटन और बेजारी महसूस करते हैं? मेडिकल साइंस कहती है कि बुजुर्गों की सेहत उनके इर्द गिर्द के माहौल और वाइब्स पर 80% मुनहसिर होती है। अगर आपके घर में बुजुर्गों को पुरसुकून नींद आती है, उनकी तबीयत हशाश बशाश रहती है और वो उस घर की दीवारों से मानूस हैं, तो मुबारक हो। ये एक हाई वैल्यू वेलनेस एनवायरनमेंट की निशानी है जो आपके प्यारों की जिंदगी में इजाफे का बाइस बनती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ मकानात ऐसे होते हैं जो अपने मकीनों को ममता की तरह अपनी गोद में छुपाए रखते हैं। जिस घर में बुजुर्ग खुश रहें वहाँ अर्श से रहमतों का नज़ूल होता है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपका घर सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं बल्कि दुआओं का किला है। क्या आप ऐसे बरकत वाले साए को बेचकर किसी ऐसे मकान में जाना चाहेंगे जहां आपके बुजुर्ग खुद को अजनबी महसूस करें? दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसकी वजह से पूरे घर में रौनक है? कमेंट में अपने घर के बुजुर्गों के लिए माशाअल्लाह लिखें ताकि उन्हें हमारी दुआएं मिल सकें। दोस्तों, अब वो 15वीं और आखिरी बड़ी निशानी आना बाकी है जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है और जो बताएगी कि क्या वाकई ये घर आपको करोड़पति बना सकता है। वो निशानी जो आपके दिल की धड़कन से जुड़ी है। क्या आप तैयार हैं ये आखिरी राज जानने के लिए? दोस्तों, अब हम उस 15वीं और आखिरी बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं जो सबसे ज्यादा वजनी है।
है। तमाम साइंस, तमाम रूहानी निशानियां एक तरफ, लेकिन क्या आपका अपना दिल इस घर में मुतमईन है? क्या आप जब बाहर से थके हारे आते हैं तो अपनी दहलीज पर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप महफूज हाथों में आ गए हैं? नफ्सियात यानी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का लाशऊर, सब कॉन्शियस अपने इर्द गिर्द के माहौल से एक गहरा ताल्लुक अस्तवार कर लेता है। अगर आपका दिल इस घर को बेचने का नाम सुनकर दुखता है या आपको ख्वाबों में कोई रोक रहा है तो मुबारक हो, ये इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू इमोशनल एसेट है। आपकी रूह इस मिट्टी से जुड़ चुकी है और ये ताल्लुक दुनिया की किसी भी महंगी प्रॉपर्टी यानी लग्जरी प्रॉपर्टी से बढ़कर है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर मकान हर इंसान के लिए मुवाफिक नहीं होता। अगर इस घर में आने के बाद आपकी औलाद हुई, आपको नौकरी मिली या आपका कारोबार चमक उठा तो ये मकान आपके लिए सादत यानी गुड लक की अलामत है। ऐसे नसीब वाले घर को बेचना अपनी खुशकिस्मती को अपने हाथों से खैरबाद कहने के मुतरादिफ है। क्या आप वाकई एक ऐसी जगह छोड़ना चाहते हैं जिसने आपको सिफर से हीरो बना दिया? दोस्तों, ये थी वो 15 निशानियां। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपके घर में इनमें से कितनी निशानियां मौजूद हैं। अगर 3 भी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस घर की कदर करें। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों से जरूर शेयर करें जो अपना घर बेचने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा ले। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपके दिल पर लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इसी तरह के दिलचस्प और रूहानी मौज़ूआत पर आपके लिए वीडियोस लाते रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।